اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ماجد علی عرف مجو کی شادی خانہ آبادی اس کی 3 عدد شادی شدہ بہنوں اور 1 عدد کنواری مگر سب پر بھاری بہن نے اپنی مشترکہ پسند نادیہ سلیم سے بڑی ہی دھوم دھام سے کروائی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی اماں کا اکلوتا اور کماؤں پوت بیٹا تھا جس کی کریانے کی دکان سے ہی اس کی بہنوں اور گھر کا خرچ چلا تھا۔ ویسے تو مجو بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا مگر بلا کا سیدھا تھا۔ مجال ہے جو اماں اور بہنوں کے آگے اس کی زبان ان کی مخالفت میں ہل جائے۔ بچپن سے ہی اس نے صرف ایک لفظ سیکھا تھا ہاں، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں۔ عمر نے 28 کا ہنسا پار کیا تو اماں کو اب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری نند مدیحہ کی بھی شادی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پر آنکھیں رکھ لے۔ اسی لیے شروع سے ہی دکان کا سارا خرچ اور آمدنی اماں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا تھا، یہ نہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیسوں کو ترسا دے۔ اور تو اور لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والا نہ ہو اور وہ اسے خوب دبا کر رکھ سکیں۔ بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ دار 26 سالہ نادیہ نے اپنی پلکوں پر ڈھیروں خواب لیے ماجد کے سنگ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے آشیانے میں چلی آئی، مگر اس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے جب مجو نے دبے دبے لفظوں میں اسے باور کرایا تھا، دیکھو نادیہ، میں نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی، بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے اور تم سے بھی، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے آگے کبھی نہ بولنا۔ یہ کیسا دلہا تھا جو شادی کی پہلی رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گر سکھا رہا تھا، جبکہ یہ رات تو ان دونوں کے وصل کی محبت کی رات تھی۔ نادیہ نے بھی جھٹ پلکیں جھکا دی، کہیں سرتاج ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہو گیا کہ مجو صرف اپنی ماں اور بہنوں کی سنتا ہے۔ سارا دن مجو کی اماں ساجدہ نادیہ کو گھر کے کاموں میں ہلکان کیے رکھتی، کبھی نند کی فرمائشیں تو کبھی ساس کی، وہ بیچاری منع بھی نہ کر پاتی، اور جو کبھی لب کھولنے کا سوچتی بھی تو ساس کی قہر آلود نگاہیں اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی خاموش کرا دیتی۔ اگر کبھی وہ میکے جانے کا سوچتی تو ساس صاحبہ کہتی، بیوی اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ میکے میں سیر سپاٹے کرتی۔ اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے میکے جا بیٹھتی ہیں ان کے شوہر بھی کہیں اور ہی دل لگی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہو جاتی، پھر میکے جانے کا نام نہ لیتی، اور جو اس کی ماں اور بہنیں اسے ملنے آ جاتی تو ساس اور نند انہیں اس کے پاس کبھی اکیلا ہی نہ چھوڑتی جو وہ کوئی حال دل کہہ سکے۔ ہاں اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن میکے میں دکھائی دیتی ہیں، انہیں کیوں ساس منع نہیں کرتی، اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹیاں۔ اس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی، صبح سے وہ کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ آگ اگلتا سورج صحن میں کپڑے دھوتی نادیہ پر مسلسل اپنا قہر برسا رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور اپنی خراب قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پھیلانے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے منہ بھر کے کہہ آئی اور وہ فوراً واش روم بھاگی تھی۔ ساس صاحبہ کو اس کے انداز ذرا کھٹکے تھے، وہ فوراً نادیہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی تو وہ نہال ہو گئی تھی۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ شام تک یہ خبر اس کی تمام نندوں تک پہنچ چکی تھی، سو وہ بچوں سمیت میکے میں آن دھمکی تھی۔ شام کو مجو گھر آیا تو شرمائی لجائی سی نادیہ اسے بہت بھائی تھی، باپ بننا اس کے لیے کسی خوش نصیبی سے کم نہ تھا۔ آج تو چھوٹی نند صاحبہ بھی کچن میں نادیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹن کی اکیلے خاطر تواضع اس کے لیے کس قدر بھی نامناسب نہ تھا۔ ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندوں کے ساتھ بند کمرے میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھی اور بچے شرارتیں کرتے نادیہ کی جان ہلکان کیے رکھتے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر بند کمرے میں یہ لوگ کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے مگر سر پر مت چڑھا لیجیے گا اپنی بہو کو، یہ نہ ہو کہ مہارانی بنا لیں آپ اور پھر آپ کے اپنے قابو ہی نہ آئے۔ نادیہ کی سب سے بڑی نند عالیہ نے گول گول آنکھیں گھمائی
और क्या अम्मी, आप तो हैं ही मासूम। अरे 1 महीना लगा है भाभी को दबा के रखने में, आप पोते की खुशी में सारी मेहनत ना बर्बाद कर दीजिएगा। ये ना हो कि भाई जोरू के गुलाम बन जाएं। भाई हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमने घर के काम नहीं किए? आपने तो पहले ही दिन बेचारी मदीहा की ड्यूटी भाभी के साथ किचन में लगा दी। हद करती हैं आप। आलिया से छोटी नजमा ने अम्मा को घूरा। कहती तो तुम ठीक हो, अब देखना कैसी लगाम कस के रखती हूँ। सास साहिबा की आंखों में बड़ी कमीनी चमक आई और फिर तीनों बहनों का बड़ा ही बेहंगम कहका फिजा में गूंजा था। बेटियों के कहने में आके सास साहिबा ने अगले दिन से ही माथे पर आंखें रख ली थी। सारा काम अकेली नादिया के सुपर्द कर दिया था और वो बेचारी हैरान परेशान सी खड़ी सोचती रह गई कि कल तो सास ने मदीहा को उसके साथ हर काम करने को कहा था, फिर ऐसा क्या हो गया जो आंखें बदल गईं। मदीहा बेटा, तुम दोपहर में चलना मेरे साथ रजिया आपा के घर, तुम्हें सिलाई सीखनी है। खैर से अब तुम्हारा ब्याह भी करना है। सोची समझी प्लानिंग के तहत सास साहिबा ने नादिया के सामने मदीहा से कहा। सिलाई सेंटर जाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि मदीहा नादिया की मदद ना कर सके और माजिद के सामने बहाना भी बन जाए कि वो बेचारी घर पर होती ही कब है। रह गई सास तो वो कहाँ इस उम्र में काम करेंगी। जी अम्मी, जैसे आप कहें। मदीहा ने मुस्कुराते हुए नादिया को देखा, जैसे कि उसकी बेबसी पर हंस रही हो। और वो तो बेचारी इतना भी नहीं कह सकती कि अम्मी अभी कुछ अरसे रुक जाएं। अब मदीहा हर वक्त अपनी सिलाई के कामों में मसरूफ रहती और नादिया घर के कामों में। कपड़े धोती तो थोड़े थोड़े कपड़े बाल्टी में भर के ऊपर पहुंचा आती। किसी को तरस न आता कि वजन उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। ढेरों बर्तन धोती, जब किचन में जाती बर्तन मुंह चिढ़ा रहे होते। नंद या सास को इतनी तौफीक ना होती कि कम से कम बर्तन धोकर रख दे। दोपहर को अलग हंडिया या रात को अलग बासी सालन या रोटी किसी को खाने की आदत नहीं थी। माजिद घर आता तो निढाल सी नादिया को देख के थोड़ा परेशान हो जाता। अक्सर वो उल्टियां करके निढाल हो जाती तो सास बड़ी ही बेफिक्री से कहती, भाई उल्टियां तो ऐसे में हो ही जाती हैं, मुझे तो पूरे 9 महीने तक होती थी, मगर मजाल है जो घर का काम रुका हो। और वो बेचारी फिर से काम में जुट जाती। इस रोज घर पर कोई ना था। मदीहा सेंटर गई हुई थी तो सास साहिबा अपनी किसी सहेली के घर हाल अहवाल पूछने की गर्ज से रवाना हो गई थी। नादिया को बड़ी देर से चक्कर आ रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से नींबू पानी बनाया था, मगर ये उसकी खराब किस्मत थी कि उससे पहले कि वो गिलास मुंह से लगाती एक जोरदार चक्कर उसे जमीन बोस कर गया था और गिलास की करचियां पूरे किचन में भर गई थी। उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने आंखें खोली तो माजिद उसके बराबर बैठा था। उसने हैरान होकर माजिद को देखा। घबराओ मत, तुम्हें चक्कर आ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी जरूरी काम से घर आ गया था और चाबी भी मेरे पास थी, वरना तो आज न जाने क्या हो जाता। तुमने अम्मा को जाने क्यों दिया? माजिद इसके लिए फिक्रमंद था। नादिया का दिल पुरसकून था। अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा। ये बहुत कमजोर हैं, इनकी खुराक का ख्याल रखें। कुछ दिन इन्हें रेस्ट करने दे और हल्का फुल्का काम कराएं। ये नहीं कि सब काम इन पर लाद दें। इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। आप बात समझें, बच्चे पर असर पड़ेगा। डॉक्टर ने रसानियत से माजिद को समझाया। वो खुद काफी टाइम से देख रहा था कि नादिया ऐसी हालत में सारा काम खुद कर रही है, मगर अम्मा से कुछ कहने की उसकी हिम्मत ना थी। मगर अब सवाल उसके बच्चे की सेहत सलामती का था। वो घर आया था तो अम्मा पहले से तनी बैठी थी। अरे ओ माजिद, बावला हो गया है क्या? ऐसी हालत में बहू को लेकर कहाँ चला गया था? मेरे आने का इंतजार तो किया होता। और बहू, सारा घर ऐसे ही गंदा छोड़ के तुम घूमने चली गई? माँ ने बहू बेटे को घूरा। अम्मा, सोचना तो तुझे चाहिए था ना मदीहा घर पर थी तो ऐसी हालत में नादिया को छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेहोश हो गई थी ये। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर ने इसे आराम का कहा है। तुम खुद काम कर लो। पहले भी तो करती थी ना। जिंदगी में पहली बार माजिद ने अम्मा के आगे जुबान खोली थी। अम्मा तो अम्मा। नादिया भी हैरान रह गई। माजिद का ये रूप देखती रह गई थी। अम्मा तो अभी तक शौक में थी। माजिद नादिया को कमरे में छोड़ आया था। फिर अम्मा की हिम्मत ना पड़ी नादिया को बुलाने की। अगले दिन अम्मा ने अपनी तीनों बेटियों को फोन करके बुला लिया। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी कि लगाम कस कर रखें। आज देख लिया ना, औलाद की वजह से वो कल की आई वो लड़की जीत गई।
कैसा ड्रामा करके भाई को अपनी तरफ कर लिया। बड़ी नंद ने बड़ी ही चालाकी से अपनी आंखें घुमाई। ये भी तो हो सकता है कि उसकी वाकई तबीयत खराब हो गई हो, मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। अम्मा आखिर थी तो माँ ही ना, बहू से दिलचस्पी ना हो, पोते का शौक तो बहरहाल उन्हें था। लो अम्मा पिघला गई हो क्या? अब यही तो ड्रामे होते हैं आराम करने के, तो भी बहू के ड्रामे में आ गई। बड़ी से छोटी नंद नजमा ने अम्मा को आंखें दिखाई। वो अपनी बातों में मगन थी और बाहर अम्मा को बुलाने के लिए आया हुआ माजिद अपनी माँ और बहनों का ये रूप देखकर सख्त सदमे में था। लम्हे में उसने फैसला किया और वो धाड़ से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। अम्मा समेत बाकी बहनें एकदम ही उछली थी, कहीं उसने सब सुन न लिया हो। वाह अम्मा वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते बसते घर को आग लगा रही हो। तुम खुद ही ब्याह कर लाई थी ना, मैं तो उसे नहीं लाया था, फिर ये फर्क क्यों? जरा देख जाकर उसे, क्या कभी उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे आगे जुबान चलाई, तुम्हारी नाफरमानी की? नहीं ना, यहाँ तक कि तुमने कभी उसे मैके तक रुकने नहीं दिया। वो इस पर भी सर झुका गई। तुम्हारी बेटियां तो रोज आती है ना, वो क्या सोचती होगी? माँ खोलो आंखें, इससे पहले कि देर हो जाए। ये सब तो अपने घर चली जाएंगी। तुम्हारी असली बेटी तो वो है ना, तुम्हारे दुख सुख की सांझी। अम्मा बेटे को देखती रह गई। लम्हा लगा था उन्हें भी सब समझने में। गलती उनकी थी जो वो बहू को बहू ही समझ रही थी और ऐसा करने में उसकी बेटियों का ही हाथ था। भाई हमें गलत ना समझ, आलिया फौरन बोली। बाजी प्लीज आप ना बोलो, आप लोग अपनी जिंदगी में खुश होना, फिर आपको इससे क्या मसला है? और अम्मा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? जरूरी है रंजिशें पालना? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दो। माजिद अम्मा के गले लग गया। माजिद के पीछे आती नादिया ने तशक्कुर अमेज नजरों से माजिद को देखा। वो तो समझी थी कि माजिद सिर्फ माँ बहनों को कहने में रहता है, लेकिन वो अब जान पाई कि माजिद सिर्फ फरमा बरदार है, उसका इखलाक अच्छा है और उसे यकीन था कि उससे बेहतर हमसफर उसे नहीं मिल सकता था। अम्मा और बहनें अलग शर्मिंदा थी, यूं के जैसे चोरी पकड़ी गई हो। रात भर शदीद तकलीफ में गुजारने के बाद उसने फजर के वक्त एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे चांद सा पोता दिया, उसकी सास हमीदा ने गोद में लेते हुए कहा। रात भर वो तस्बीह और अल्लाह से दुआ करने में मसरूफ रही थी। हाँ अम्मा देख, मेरे जैसा है ना बिल्कुल। माजिद ने अम्मा के कंधे पर सर रखा। जी नहीं, सिर्फ तेरे जैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी नादिया जैसा भी है। अम्मा ने झुक के नादिया के पेशानी पर प्यार किया और नन्हे मुन्ने को नादिया के बराबर में लिटा दिया। नादिया ने मोहब्बत से अपने मुकम्मल घर को और इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर लिया था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त मुश्किल होता है, जिसे अपनी समझदारी और खुश इखलाकी और सब्र से गुजारना होता है। और नादिया ने भी अपनी माँ से यही सीखा था, जिसकी बदौलत आज उसकी सास भी उसकी थी और माजिद तो था ही। उसका जीवन एक ख्वाब सफर लगने लगा था।